Hi everyone. So for every contract you need one buyer and one seller, right? Options are no exception to it. So when we were in the previous video discussing about option premiums, we discussed that a buyer has to pay 150 rupees into 75 for buying a call option, 25 450 strike price in our previous example. Similarly, if he wants to buy, somebody has to sell. Now why that somebody will sell an option? I will just explain you what buying margin and what selling margin difference is. तो जब आप डिफरेंस देखेंगे तो आप बोलेंगे यार इसको इतना ही मिलना है, then why he is selling the option? Option selling is multi-fold expensive than option buying. Then how do we get option sellers from? चलिए वही सब समझते हैं, पे ऑफ समझते हैं, सारा डिसीजन समझते हैं, सारा टेक्निक समझते हैं एंड फिर देखेंगे वाई वन इज बाइंग एन ऑप्शन. ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं आपको लेके चलूंगा स्क्रीन पे. स्क्रीन पे हम चलते हैं. स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा दिस इज एन ऑप्शन चेन. 10th जुलाई 25,450 ऑप्शंस, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, राइट. लेट्स the moment I bring this toggle over here, we are seeing buy and sell, right? Let's click buy. If I have clicked buy, you see that 10th July 25,450 CE options, one lot 150 rupees is the buying price. What is the margin required? Almost 11,000 rupees, right? So we need only 11,000 rupees to buy this particular option, right? Let's try selling it. I'll just click buy, it will turn into sell. See, to sell one lot option we require margin of 2,12,000 rupees. Let's see what buying put option will require. Buying a put option will require 9,200 rupees of margin because it is of 122 rupees. Let's click sell on this. It will also require 2.8 lakh rupees of margin. 2.08 lakh rupees means 2.1 lakh rupees. So approximately to sell an option हम लोग को कितना लग रहा है, 2,10,000 रुपए, और खरीदने में इतना लग रहा है अप्रोक्सीमेटली 10,000. सो क्यों कोई सेलर सेल करेगा इसको? इसका रीजन मैं आपको समझाता हूँ. Why somebody will buy an option, why somebody will sell an option. For that we need to look at the chart that is getting created below. Okay, I will explain you with an example of call option. If you reverse the entire logic, you can check the same on put option. Okay, so let's see. Let's first discuss buying an option. Okay, 25,450 का कॉल ऑप्शन, मार्केट अभी वहीं पे है, मैंने उसका कॉल ऑप्शन परचेज कर लिया. ठीक है, नाउ it is we are paying 11,294. Maximum loss which is showing over here is 11,288 rupees. Okay, this is the maximum loss in buying this particular option. Okay, so if I buy this option, I may end up losing this particular amount. That is the maximum loss I can have. Okay, when will this loss happen? Say market is at 25,461. If market remains at this place, okay, market is at 25,461. Today is 4th of July. I'm dragging this to 10th of July. Say if 10th of July market ends here only, then we end up losing, instead of 11,288, we end up losing 10,460 rupees. Okay, that is the loss we have to bear. अगर लॉस ही होना है तो कोई क्यों ट्रेड करेगा इसको? बिकॉज ये हम कब देख रहे हैं, ये हम 11th जुलाई का देख रहे हैं. आज क्या है? आज है 4th of July. ठीक है ना, 4th of July को ये प्रीमियम आपको कितना दिख रहा है? ये प्रीमियम दिख रहा है 150 रुपीज. नाउ मेरा अगर एम सिर्फ प्रॉफिट बनाना है तो ये प्रीमियम 150 से अगर 160 भी हो गया, ठीक है, ये प्रीमियम 150 से मार्केट और 30-40 पॉइंट्स इंक्रीज कर जाता है. ओके, सो ये प्रीमियम अगर 150 से 170 180 भी हो गया तो मेरा क्या हो जाएगा? प्रोजेक्टेड रिटर्न्स 1,500 रुपए का आ जाएगा. यानी कि मार्केट थोड़ा सा भी मूव करेगा ना तो आई विल एंड अप गेनिंग समथिंग इन माई बुलिश साइड. अब आप देखो कि मैंने थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज किया, चलो हम इसको 25,500 कर लेते हैं, अज्यूमिंग कि मार्केट 25,500 पे चला गया.
ठीक है, तो आज अगर 25,500 पे जाता है तब मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 2000 तक का प्रॉफिट हो सकता है। बट हम अगर नेक्स्ट डे जाते हैं 7 जुलाई को और 7 जुलाई के एंड पे देखते हैं, तो 7 जुलाई मतलब 8 जुलाई के बिगिनिंग में देखते हैं, तो वी आर एक्चुअली एंकरिंग लॉस। क्यों हो रहा है लॉस ये? बिकॉज टाइम वैल्यू डिके होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही और आगे बढ़ेंगे अगेन टाइम वैल्यू डिके, अगेन टाइम वैल्यू डिके। बट अगर यही सेम मूवमेंट मेरे को आज ही मिल जाए देन आई विल गेन समथिंग। तो मोस्टली ऑप्शन बाइंग इज डन बाय स्पेकुलेटर्स। उनका बस छोटा सा विजन होता है कि मेरा मान लो 150 रुपीज का मैंने परचेज किया, 150 का 170 180 मिल गया, इट इज गुड एनफ फॉर मी, आई विल बुक माई प्रॉफिट, आई विल गो। बिकॉज अगर आप इसको होल्ड कर लेते हो और ये 25,500 पे भी है, अगर आप इसको डे एंड तक होल्ड करते हो थर्सडे को, तो भी यू विल एंड अप लूजिंग 7,500 रुपीज। Whereas if say you are an option seller, ठीक है, and market आपका लॉस पोटेंशियल अनलिमिटेड है, मैक्स प्रॉफिट आपको 11,280 होगा। बट इवन इफ मार्केट 25,500 पे है, तो एट द एंड ऑफ थर्सडे 10th of July you will still end up gaining 10,000 रुपीज। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेलिंग का आपको थीटा का वैल्यू गेन मिल गया, टाइम वैल्यू जो डिके हुआ वो आपको पूरा गेन मिल गया, राइट। जो ऑप्शन बायर होता है उसका प्रॉफिट स्टार्ट कब होता है? जिससे अगर हम उनको वापस से बाइंग कर देते हैं, ऑप्शन बायर का प्रॉफिट स्टार्ट होता है एक्चुअली आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट। मींस जो एक्सपेक्टेड प्रीमियम अभी है, से अभी 150 रुपीज प्रीमियम है, तो रफली करंट प्राइस से मार्केट 25,580 तक चला गया, 460 से 580 तक चला गया, तब इसका प्रोजेक्टेड प्रॉफिट स्टार्ट होता है। वेयरएज ऑप्शन सेलर का लॉसेस जो होता है इट स्टार्ट्स आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट। मतलब उसको गेन तो आना है, मार्केट सही यहाँ साइडवेज भी रह गया, स्टैग्नेंट भी रह गया, यहाँ से मूव नहीं भी किया तो भी ही विल गेन समथिंग। बट उसका एक्चुअल लॉस कब होगा? उसका एक्चुअल लॉस स्टार्ट होगा 25,600 के बाद, नॉट बिफोर इट। सो उसका एक्चुअल लॉस कहाँ होगा? 25,600 के ऊपर मार्केट चला जाएगा, तब उसका एक्चुअल लॉस स्टार्ट होगा। सो टेक्निकली उसका चूंकि लॉस इतना दूर से स्टार्ट होगा, ही स्टैंड्स इन ए बेटर पोजीशन कंपेयर्ड टू ऑप्शन बायर, बिकॉज उसका लॉस स्टार्ट ही लेट से हो। एंड दैट्स व्हाई यू स्टिल हैव ऑप्शन सेलर्स इन द मार्केट। नाउ ऑप्शन बायर का प्रॉफिट स्टार्ट होना है आफ्टर 120-130 पॉइंट्स फ्रॉम दिस लेवल। ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट कहां से स्टार्ट हो जाना है? एंट्री करते ही उसका एक्चुअली प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है। उसका लॉस होगा इफ मार्केट मूव्स 150 पॉइंट्स फ्रॉम हियर। दैट्स व्हाई ऑप्शन सेलिंग में सेलर्स हमेशा मिल जाते हैं। प्लस ऑप्शन सेलर्स कभी भी सिंगल साइड स्ट्रेटेजी नहीं प्ले करते हैं, वो क्या करते हैं? दोनों साइड की स्ट्रेटेजी प्ले करते हैं। तो उन्होंने मान लीजिए कॉल ऑप्शन सेल किया, तो वो पुट ऑप्शन भी सेल कर देंगे। अब आप नोटिस करो, इनिशियली मार्जिन रिक्वायरमेंट 2,10,000 था, एडिशनली मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना बढ़ा? फाइनल मार्जिन रिक्वायरमेंट इज 2.5 लाख रुपीज। तो नेट टोटल मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना बढ़ के आया? सिर्फ 40,000। बट अब देखो आप पे ऑफ कैसे चेंज हो गया। मार्केट अगर साइडवेज रहता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर वो मार्केट ऊपर भी जाता है तो पहले हमको 600 पे लॉस स्टार्ट होता, अब ये 720 से लॉस स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो पुट का प्रीमियम डिक्लाइन करेगा, एंड मार्केट अगर नीचे जाएगा तो कॉल का प्रीमियम डिक्लाइन करेगा, राइट। तो टेक्निकली 150 प्लस 122 यानी कि 270 पॉइंट्स। तो हमको मार्केट अभी जहां पे है यहां से 270 पॉइंट्स मार्केट ऊपर जाए या 270 पॉइंट्स मार्केट नीचे जाए, मुझे लॉस नहीं होना है। तो ऑप्शन सेलर्स क्या है? मल्टी साइड स्ट्रेटेजी प्ले करते हैं, बिकॉज उनको क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट में एक्स्ट्रा वो नहीं देना पड़ता है कि एक्स्ट्रा बहुत डबल मार्जिन नहीं लगता है। लेकिन आपका मार्जिन ऑफ एरर कितना इंक्रीज कर गया? फ्रॉम 150 पॉइंट, नाउ योर मार्जिन ऑफ एरर हैज इंक्रीज टू 270 पॉइंट्स, राइट। एंड इफ मार्केट रिमेन्स बिटवीन दिस, यू विल एंड अप गेनिंग समथिंग। यही गेम है ऑप्शन सेलिंग का, एंड दैट्स व्हाई यू हैव ऑप्शन सेलर्स इन द सिस्टम। अगर ये नहीं होता तो ऑप्शन सेलर्स मिलते ही नहीं आपको सिस्टम। दोनों को बाइंग में कन्वर्ट कर दे। मान लीजिए आपने कॉल एंड पुट ऑप्शन दोनों ही बाई कर लिया, आपका मार्जिन डबल हो गया, क्योंकि बाइंग में आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा, 20,000 पूरा लग गया। एंड उसके बाद आप देखो तो आपको आपका जो प्रॉफिट स्टार्ट होगा वो बियॉन्ड 270 पॉइंट्स होगा। मतलब कि आपको प्रॉफिट अर्न करने के लिए भी यू एटलीस्ट नीड टू हैव
270 पॉइंट्स मूवमेंट, ठीक है, क्योंकि एक डायरेक्शन में मूवमेंट होगा तो बहुत सिग्निफिकेंट मूवमेंट लगेगा, तभी आपका प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट होगा. दैट्स व्हाई वी हैव सो मेनी ऑप्शन सेलर्स इन द सिस्टम. ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया कि हु इज अ बायर ऑफ एन ऑप्शन, हु इज सेलर ऑफ एन ऑप्शन. ठीक है, मार्जिन कितना लगता है सेलिंग में, कितना नहीं लगता है, क्या पता अगर हम दोनों सेल करें तो मार्जिन में डिफरेंस क्या आता है, बाइंग में क्या डिफरेंस आता है, और इसका पे ऑफ चार्ट कैसा दिखता है, ये चीज है. ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एंड करते हैं चैप्टर को. नेक्स्ट चैप्टर में वी लर्न अबाउट रिस्क मैनेजमेंट इन्वॉल्व्ड इन ट्रेडिंग सच काइंड ऑफ ट्रेड्स, बिकॉज इफ वी आर सीइंग द टर्म अनलिमिटेड लॉसेस मीन्स देयर शुड बी ए कैविएट जहां पे हम अनलिमिटेड लॉसेस को कहीं तो रेस्ट्रिक्ट करें, बिकॉज व्हाट इफ अनलिमिटेड हो ही जाए तो doesn't make sense blowing your capital. We will restrict our losses by using risk management tools. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.